China carried out a military drill close to India's border last week, moving tons of combat vehicles and lethal weapons into the area. We urge again that the Indian side should stick to our historic deals on borders, respect China's territorial sovereignty, and withdraw the troops. China's state-run media is speculating an all-out war. So what's behind this aggression? The two nuclear-armed neighbours have been caught in border disputes for several decades. They even fought in a war in 1962. The Chinese army crossed over into India-held disputed territories several times in the past few years. There was never any armed violence, but there's been some arm wrestling and grabbing. And it's not just border issues. China finds India hostile on many fronts. India supports a separatist movement in Chinese-controlled Tibet, giving shelter to Tibetan refugees and their leader, Dalai Lama, since 1959. The country also opposes China's growing presence in the South China Sea, siding with Washington and its allies. In return, China blocked India's entry into the nuclear suppliers group in May, striking a major blow to India's geopolitical aspirations. India refused to participate in the China-Pakistan Economic Corridor, a road network aimed at enhancing China's trade reach to the Middle East and Europe. But it doesn't stop there. India recently made a new move in Bhutan, further estranging itself from China. Bhutan, a tiny kingdom between India and China, has its own territorial disputes with Beijing. India dispatched its army to Doklam, a disputed region between Bhutan and Beijing, after the Bhutanese kingdom sought help from New Delhi in June. India's foreign minister claims China's presence in Doklam is a military threat to India. Since then, the Chinese government has taken a hawkish stance against India, and India isn't willing to budge either. Are the two countries really on the brink of war, or are they just flexing their muscles to gain regional superiority? Only time will tell. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शुएब खान और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस इशू के ऊपर बात करने जा रहा हूं वो है साउथ एशिया रीजन के हवाले से। इस रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है। आजकल चाइना और इंडिया के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके बाद दुनिया में ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद दुनिया एक नई जंग की तरफ जा रही है। ऑलरेडी दुनिया में एक इशू कोरोना वायरस की सूरत में जो है वो चल रहा है और कुछ ममालिक इल्ज़ामात जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन मैं स्पेसिफिक रहूँगा सिर्फ एक इशू के हवाले से, जो कि चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट है। इससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जो आज से पहले या तो बहुत कम आप लोगों ने सुनी होगी या फिर बहुत सारे व्यूवर्स ने सुनी ही नहीं होगी। जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो ये एक वैली थी। मैं कुछ मैप्स भी आपके साथ शेयर करूंगा स्क्रीन पे। उन मैप्स के ज़रिए मैं ये सब समझाने की कोशिश करूंगा कि जो नक्शे में हमें कश्मीर की टेरिटरी नज़र आती है, बेसिकली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी कैसे है इन तीन ममालिक के दरमियान। तो सबसे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, पार्टीशन से पहले वो प्रिंसली स्टेट जो है वो थी, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे जो है वो नवाब, जैसे भावलपुर में कहते हैं कि नवाबों का रूल था, और राजगान या राजों का रूल था आपके कुछ एरियाज़ में इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के। इसी तरह कश्मीर भी जो है वो गुलाब सिंह उनके दौर में जो है वो परचेज़ किया गया, और उन्होंने जो है ना वो अपनी एक रूलिंग पार्टी थी या जो भी रूल उनके हवाले से चल रहा था वहाँ पे, उसको उन्होंने जो है वहाँ पे अपनी गवर्नेंस के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव मामला के लिए इस्तेमाल किया। मीनवाइल हुआ ये कि सब कॉन्टिनेंट के मामला ख़राब होते गए, पार्टीशन की बात आ गई, और फिर अल्टीमेटली 47 में जो है वो पाकिस्तान और इंडिया जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी से ख़त्म होकर एक अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई। अब जब कश्मीर की बात आई तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो 47 तक जो है वो इंडिया के पास ही था। अब जो मैंने जम्मू एंड कश्मीर की बात की तो वहाँ पे कुछ एरियाज़ आते हैं जिनमें आपका गिलगित बल्तिस्तान, उसके बाद आपका आज़ाद जम्मू कश्मीर जो प्रेजेंट में है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको जम्मू एंड कश्मीर अब कहा जाता है, और उसके अलावा जो है जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है वहाँ पे एक्साई चीन का इलाका, और फिर ऊपर तिब्बत का इलाका, तिब्बत का जो इलाका है, और साथ लद्दाख का इलाका। जो तिब्बत का इलाका है उसकी एक अलग से स्टोरी है, वो मैं आगे जाके आपके साथ उसके ऊपर भी रोशनी डालूंगा। लेकिन जब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ तो हुआ ये कि 48 में जब पाकिस्तान ने एक इलाका छुड़वा लिया
फिर मीनवाइल हुआ ये कि जैसे मैंने आपसे एक्साई चेन की बात की, तो उसके अलावा जो है वो कुछ स्टेट्स थी जिनको चाइना जो रिकग्नाइज़ नहीं करता, और वो ये कहता है कि ये स्टेट्स जो है वो हमारी हैं और इंडियन सॉवरेंटी को वो नहीं मानते वहाँ पे, जिनमें उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है और इस तरह के कुछ और इलाके हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। अब एक्साई चेन का जो शुरू में इलाका था, इससे पहले जो एक लाइन थी जिसको मैकमहन लाइन कहा जाता था, वो तकरीबन 1914 में जो है उसके ऊपर एक डिबेट हुई और उसके हवाले से जो है ना कुछ चीज़ें जो है वो बनाई गई, कमीशन बनाया गया ब्रिटेन ने, और उन्होंने कहा कि ये एक्साई चेन की जो बाउंड्री है, जो टेरिटरी है, उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया। वो ओरिजिनल लाइन थी और ये बात है तकरीबन पार्टीशन से पहले की। जब पार्टीशन के बाद की बात आई तो उस वक्त जब इंडिया और चाइना का मामला थोड़ा सा मज़ीद ख़राब हुआ और 62 में जो है वो इंडिया और चाइना की वॉर हो गई, जिसको सीनो इंडियन वॉर भी कहा जाता है। उसमें जो है ना वो जो एक्साई चेन की पूरी टेरिटरी थी वो चाइना ने जो है वो उसके ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया और हासिल कर ली वो। अब उसके साथ जो बाकी स्टेट्स हैं, जो लद्दाख और इस तरह के जो श्रीनगर है, जम्मू एंड कश्मीर वैली है, वो सारा जो वो इंडिया के पास ही रह गया और इंडिया ने जो वो अपनी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना लिया। अब यूनियन टेरिटरीज बेसिकली के जो फेडरल कैपिटल होता है आपके मुल्क का, वो उसको जो है वो रूल करता है, जबकि जो बाकी स्टेट्स होती हैं वो उसके यूनिट्स होते हैं, जैसे प्रोविंस कह लें, और वो अपने इंडिपेंडेंटली चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले आपने फाटा का नाम सुना हो, और फाटा जो है वो उसको जो है वो आपका कैपिटल ही डील कर रहा था। इसी तरह से यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो था वो उसमें ये लद्दाख और इसके जो एडजॉइनिंग एरियाज थे उसको वो रूल कर रहा था। अब हुआ क्या, जब ये एक्साई चेन वाला मामला हुआ तो उसके बाद उनको फिर वही बात है कि डिप्लोमेटिक चैनल से आना पड़ा और फिर एक एग्रीमेंट इनका साइन हुआ, और उस 1962 की वॉर के बाद जो है वो फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी, जिसको LAC कहा जाता है। और LAC बन गई, लेकिन वहाँ पे कोई बॉर्डर फेंसिंग नहीं हुई और वहाँ पे जो है कोई प्रॉपर इस तरह से मामला नहीं हुआ कि कोई ये रिकग्नाइज़ कर पाए कि इंडियन टेरिटरी कौन सी और चाइनीज़ टेरिटरी कौन सी है। तो बेसिकली हुआ ये कि जब LAC बनी तो उससे पहले जब हम दूसरी साइड पे जाते हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो कश्मीर वाला मामला है, वहाँ LOC है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहा जाता है, और ओरिजिनली उस लाइन को सीज़ फायर लाइन कहा जाता था। अब जब मैं इसकी LAC की बात करता हूँ, इसके ऑपोजिट, तो उसमें आप देखें जब मैंने 1962 की बात की कि चाइना कंट्रोल कर रहा था एक्साई चेन को, जो ईस्टर्न पार्ट है, और फिर इसके बाद जब ये इशू चल रहा था तो फिर बिल क्लिंटन जो US प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये कहा कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट रीजन है डील करने के लिए, और डेंजरस भी है, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत थे, मतलब जैसे नेपाल का है, भूटान का है, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया का इशू चल रहा है, इंडिया चाइना का इशू चल रहा है, और फिर मीनवाइल वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो जिसको ओल्ड सिल्क रूट कहा जाता है, चाइना ने उसका दोबारा से इनिशिएटिव लिया। फिर CPEC का एग्रीमेंट हो गया पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें रिवाइव होना शुरू हो गई। जब तिब्बत रीजन की मैं बात करता हूँ, तिब्बत रीजन बेसिकली शुरू में एक ऑटोनमस रीजन था और वहाँ पे जो है वो जो बुद्धिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा रह रहे थे, और मतलब इतना आप कह लेंगे दुनिया का हाईएस्ट माउंटेनियस एरिया है जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, और उसकी वजह यह है कि वहाँ पे मौसम बहुत सख्त होता है और सर्दी बहुत होती है और ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा जो है वो इशू होता है। अब जब मैंने शुरू में आपसे वो मैकमहन लाइन की बात की, इसी तरह से जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात की, फिर LOC की बात की। अब जब मैंने आपके साथ इंडियन एरियाज़ की बात की थी तो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, जो बुद्धिस्ट हैं उनके एक पेशवा होते हैं जिनको दलाई लामा कहा जाता है। तो जो 14th दलाई लामा थे, जिनको आप बुद्धिस्ट रिलीजियस स्कॉलर कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया की जो है ना वो सॉवरेंटी हम नहीं मानते, जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, और वहाँ पे जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगी, क्योंकि वो तिब्बत का हिस्सा था। तो और तिब्बत को जो है वो चाइना रूल कर रहा था और चाइना के साथ उसके मामला चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि दलाई लामा ने कहा कि हम नहीं मानते, लेकिन मीनवाइल कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स चले और बहुत सारा मामला जो है वो पॉलिटिकली भी डील किया गया। तो 2008 में पहली दफ़ा दलाई लामा ने जो है वो इस बात को रिकग्नाइज़ किया कि ये जो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट है, ये जो है हम इसको तस्लीम करते हैं, ये इंडिया का हिस्सा है। अब जो इंडियन यूनियन टेरिटरी की मैंने बात की थी शुरू में,
वो जो उसका एरिया तकरीबन वो बनता है 4056 किलोमीटर का स्क्वायर फुट का जो वो एरिया है, और उसमें ये तकरीबन 5 स्टेट्स आती हैं, जो लद्दाख है जिसमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये सारे बॉर्डर एरियाज हैं जो अक्साई चीन और फिर चाइना के साथ मिलते हैं। और जो चाइनीज़ साइड है वहाँ पे तिब्बत का एरिया है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल एरियाज ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की बहुत खूबसूरती है वहाँ पे। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें वो ये है कि माउंट एवरेस्ट, आपने नाम सुना होगा, दुनिया की बुलंद तरीन उसको चोटी कहा जाता है। उसकी जो एक साइड है वो तिब्बत वाली साइड पर है और जो दूसरी साइड है वो नेपाल वाली साइड पे है। अब जब मैं जो नेपाल वाला इशू है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो तिब्बत और लद्दाख वाला जो इशू है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। तो तिब्बत की जो तकरीबन रकबा है वो तकरीबन 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर मुश्तमिल है वो टेरिटरी। और उसके ऊपर जो है ना, उसके अंदर जो एथनिक ग्रुप्स हैं जिनमें तमंग, शेरपा, लोभा और मोनपा, इस तरह के जो है वो माइनॉरिटीज़ या एथनिक ग्रुप्स वहाँ पर रह रहे हैं। हाईएस्ट रीजन है अर्थ पे, तकरीबन 16,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है सतह समंदर से। और इसकी जो माउंट एवरेस्ट की मैंने बात की, सतह समंदर से उसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 29,029 फुट है। तो इतनी ऊंची बुलंदी पर है। और वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो भी कहते हैं कि कुदरत का करिश्मा है, और जो पानी के रिसोर्सेज है वहाँ पे उसके ऊपर भी शायद आने वाले वक्तों में जंग हो सकती है। अब ये चाइना नेपाल के बॉर्डर के ऊपर है और मैं आपको उस चीज़ के हवाले से बता चुका हूँ। जब हम मज़ीद इसके ऊपर आप थोड़ी सी चीज़ें देखें तो ये पता लगता है कि लद्दाख का जो लार्जेस्ट टाउन है उसमें लेह और कारगिल, ये दो अलग अलग इलाके हैं। कारगिल की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी मैं आपके साथ इसी एक के एपिसोड के सीक्वेंस में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। और जो इन इलाकों में जो माइनॉरिटी ग्रुप्स रह रहे हैं उनमें नॉर्मली 46% जो वो मुस्लिम हैं, और अहले तशी कम्युनिटी, हमारे जो अहले तशी कम्युनिटी के लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा बुद्धिस्ट हैं, 40% जो है वो दुनिया के 40% आप कह लें पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पर रह रही है बुद्धिस्ट कम्युनिटी की। हिंदू हैं 12% हैं, और जो साइड लाइन माइनॉरिटीज़ हैं, ये जो आप कह लें मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ हैं, वो 2% हैं। अब ये ओरिजिनली इशू हुआ इन दिनों ये कि जो चाइना के ऊपर दुनिया में इल्ज़ाम लग रहा था कि कोरोना वायरस जो है वो चाइना की वजह से फैला, यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, जिसकी वजह से चाइना ने ये अटेंशन भी डाइवर्ट करनी थी। तो वन ऑफ द मेन रीज़न ये था कि चाइना ने, अगर आप ओरिजिनली देखें तो इस दफ़ा चाइना ने जो इंडिया के साथ मामला हुआ है लद्दाख वाला, उसमें इंडिया का क्लेम यही है कि इस दफ़ा चाइना ने हमारी जो सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, और वहाँ से जो है ना वो आगे मामला चलना शुरू हो गया। मेरी वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट था। आई होप कि यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये इंटरेस्टिंग होंगी आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव भी होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने नेक्स्ट पार्ट में इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊँगा और आपके साथ मज़ीद चीज़ें शेयर करूँगा। थैंक यू।